So, hello everyone. Welcome to all the AFO aspirants who are preparing for IBPS AFO 2024. In this particular special session, we have Mr. Abhishek Bahuguna sir, who is now posted in Jaunpur and he's actually in Union Bank of India. So here if we ask, so Abhishek sir has cleared AFO exam in 2020 and therefore now he has a good cherished experience of 3 years as an agricultural field officer. So that's why in this particular session, let's try to learn some of his insights for preparation of AFO exam. Let's also go through some of his experiences because I think now in these 3 years, Abhishek sir has seen whatever his experiences, his responsibilities, and overall, as he has cleared the exam in 2020 also, he can give us insights of both preparation also as well as overall experience as a AFO officer also. So now let's begin for this wonderful session. I am very interested to have this session as well as conversation with Abhishek sir. So therefore, let's quickly begin. Sir, I will break the ice with this particular direct question that as a AFO officer, when you initially joined Union Bank of India, uh, when you joined as an agricultural field officer, there would be various day-to-day responsibilities, duties. So, what would a daily schedule of agricultural field officer look like when you initially joined in 2020? When I initially joined in 2020, the day-to-day responsibilities about the agriculture field officer, you have to deal with the agriculture loans basically. You have to do the survey of the agriculture loans, farmers, and one more thing, apart from this advances, you have to see also the recovery part of the bank. Okay, you have to see the assets part of the bank for the recovery purpose. And apart from this agriculture loan, you have to also deal with the other type of loans like retail and MSME. And also, you should also involve in the day-to-day operations of the bank. Okay, sir. Sir, as we all know, we all are college students, then we get passed out, then we prepare Yeah, for such competitive exams. yeah, Same thing is with all the agricultural aspirants. They clear AFO exam. Now we yeah, don't have any training to work for any bank. So, yeah. did Union Bank of India give you any particular training after clearing the exam? What was the support they gave so that you started as an agricultural field officer? Yeah, the all bank conduct a induction program for the newly joined AFOs. That is actually a 20 days induction training program in which the bank provide the basic material and basic support for the day-to-day activities what we are going to do in the bank, that is for the advanced purpose. Okay, they all give you the training 21 days induction training program. Apart from this, normally 2 to 3 days training running in the bank. So just a casual question: is the training so difficult or something like that, or and what do they teach actually in the training? Is it just about technical things or something else? No, no, no. All the things, mainly they taught about the technical things. Means what you have to see while processing the loans. When a party comes to you for the loans, then what will you do? Then all type of the practical sessions as well as theoretical sessions is taken in the training program. But apart from the training, in my experience, actual banking comes after when you sit in the seat and the farmers come to you, then you automatically know what I should do. Yes, I got you, sir. I got you. A very realistic like example you have given. Yeah, Sir, in same direction only, I will ask you a same doubt which I have in my mind. So yeah, a fresher, he clears the AFO exam. He's yeah, been trained in the induction program for 10-20 days, and yeah, then he sits to the needy farmers. yeah. Now, what were the initial challenges as an AFO officer which you faced while doing the first role, just in first 6 months? And if those challenges were really hectic, how did you solve those challenges? How did you overcome them? Please just share some of your experience in this context. Um, uh,
Challenges, if I talk about the challenges, first challenge is the when you have to post it in the rural locality. Okay, बैंक आपको पोस्टिंग देगा नहीं कहीं सिटी में, तो सही बात है, सही बात ठीक है, कोई रूरल एरिया में आपको पोस्टिंग मिलेगा, तो रूरल एरिया में जो पोस्टिंग मिलेगा आपको, तो सबसे पहले तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है। है। यस, तो आपको लैंग्वेज को, क्योंकि यू आर डीलिंग विद द फार्मर एंड यू हैव टू कनेक्ट विद द फार्मर, ओके, यू आर सर्विंग द फार्मर, तो आपको कनेक्ट करना होगा लोकल फार्मर से। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज का बैरियर आता है। दूसरा, लैंग्वेज का बैरियर आप क्रॉस कर भी लो, उसके बाद सपोज कोई पार्टी आई आपके पास, तो आपके पास कोई पार्टी आई है, तो यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज कि उसको कौन सा प्रोडक्ट मैं सर्व करूं। ओके, क्योंकि कोई एक सिंगल प्रोडक्ट तो है नहीं फार्मर के लिए, बैंक के पास बहुत सारा प्रोडक्ट है किसी भी फार्मर के लिए, कि हाँ किस सेक्टर को उसको लोन दिया जाए, किस चीज में उसको लोन चाहिए, और कौन सा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो प्रोडक्ट की भी आपको इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा होना चाहिए। तो ये सारा का सारा आप जब बैठते हैं, मैं पहले बताया आपको, जैसे आप सीट पे बैठिएगा, तो आपको खुद ही ये चीजें नॉलेज आने लगेंगी, आप खुद ही उन चीजों को ओवरकम करने पड़ेंगे, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है, तो आप खुद ही उन चीजों को टैकल करके सीखने लगते हैं। yes, yes. You are very very right. Uh, Other than that, so now if initial 6 months you consider, and now Yeah, if you consider your 3 years as an agricultural field officer, आपका yeah, कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल? ओवरऑल व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? टेल मी इन 2-3 ways you can tell me. First is professional, yeah, second is little bit satisfaction है कि नहीं? What are yeah. these two experience of yours? थोड़ा सा वो बताइए। मे बी स्टूडेंट्स को कैसे होता है कि हम एएफओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे, एक बार क्लियर करेंगे, ऑफिसर बनेंगे, पर ऑफिसर बनने के बाद उस तरफ क्या है? व्हाट इज टू द अदर साइड, साइड बी, आफ्टर बीइंग ऑफिसर व्हाट इज द लाइफ? दैट प्लीज शेड सो दैट स्टूडेंट गेट्स आइडिया, ओके एक्चुअली ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है। प्रोफेशनल की बात करूं, अगर मैं प्रोफेशनल के फील्ड में अगर हम बात करें, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर द बेसिक पिलर ऑफ द बैंक, बिकॉज यू आर डूइंग द एडवांस। या, ठीक है। तो अगर मैं बैंकिंग के साइड की बात करूं, तो बैंकिंग के प्रोस्पेक्ट में आपको कोई भी पार्टी आपको सही चुननी होगी। ठीक है, कि मेरा लोन जो भी मैं दे रहा हूँ वो डिफॉल्ट ना हो, यस, वो स्टैंडर्ड रहे, अच्छी पार्टी को मैं वो करूँ। तो प्रोफेशनली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। आपको हर चीज मतलब देख के करना पड़ेगा। ठीक है। यस, और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, हम सेटिस्फेक्शन की बात करें, तो जॉब है जो हमारी, वो पूरी की पूरी, आप जब भी कोई किसी नीडी फार्मर के लिए करिएगा, आपके एक लोन की वजह से कई लोगों का घर चलेगा, किसी को इकोनॉमी बढ़ेगी, उसका आपका हेल्प करोगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन बहुत होगा, इतना सेटिस्फेक्शन होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया है। यस, और मैं मानता हूँ कि यही जो जिस जॉब में हम हैं, इस जॉब में आपको इतना सेटिस्फेक्शन है क्योंकि आप डायरेक्ट किसी की हेल्प कर रहे हैं, जबकि आपको बैंक पे कर रहा है, आपको सैलरी मिल रहा है, बट इस सैलरी के अलावा एक इतनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम किसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये नाइस। आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा कि सर्व करके कि हाँ ये है। हालांकि हेक्टिक लाइफ बहुत हेक्टिक होगी आपको, क्योंकि फार्मर से डील करना है, सर्वे करना होगा, कई बार आपको मॉर्निंग में भी जाना पड़ेगा, यस, कई बार आपको नीड बेस्ड पे लेट सिटिंग भी होता है, बट जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो सब चीजें ओवरकम हो जाती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। such a wonderful answer, sir. Such a wonderful answer, actually. Yeah, you said very, very right. That apart from professional satisfaction, which is there only because you are a banking officer, Yeah, overall lending has been on your shoulder. yeah, इसके अलावा आपके पास एक मॉरल सेटिस्फेक्शन भी होता है दैट यस, मैं बस इकोनॉमी को नहीं बढ़ा रहा हूँ, बट मे बी आई एम द रीजन बिकॉज ऑफ विच शायद से थोड़ा पैसा किसी के घर में आ रहा है, और या फिर बिल्कुल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस विच आई एम प्रोवाइडिंग. Very beautiful बिल्कुल। answer. Sir, in same direction as you said related to, yes, scheduling, responsibility, इस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कभी कभार बैंकिंग जॉब. सो Yeah, एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी इन सोसाइटी everybody has viewpoint and opinions about the banking jobs. So yeah, considering, yeah, so considering that, I want to ask you that can you share some of your experiences related to your
work culture as well as work life balance which is there as a AFO officer? वर्क कल्चर जैसे कि मैं कहा ही आपको, थोड़ा बिजी लाइफ तो होती है, Busy life, yeah. बट ये है कि सब चीजें आपको मेंटेन करके चलना होता है। Yeah. अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे बैंकिंग सेक्टर में आना है, तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, क्या मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करके तो चलना पड़ेगा। Yes. ठीक है। अब ये सब चीज है कि आप अपनी लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं। Yes. आपको डे टू डे मोटिवेशन चाहिए। आपको मोटिवेशन तो खैर खुद ही आ जाता है जब आपको लगेगा कि आप जॉब में जा रहे हैं, हाँ प्रिपेयर करने के लिए है, किसी का हेल्प होगा, ये चीज आपको खुद ही मोटिवेशन दे देगी, हाँ मुझे करना है। ठीक है। कई बार लेट सिटिंग होती है, तो लेट सिटिंग होते हुए एक चीज बस दिमाग में आती है कि हाँ मैं भले लेट बैठा हूँ, बट इसकी वजह से किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो वो चीज आपको वो Yes. करती है, मोटिवेट करती है। Yes. सही कहा सर। एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग इज रियली वेरी वेरी राइट दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज इन आवर ओन हैंड्स। और या मोटिवेशन अगर हो तो आप कर सकते हो। बिल्कुल। एंड सारे प्रोफेशंस में यही होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आई थिंक आफ्टर getting every important question from all the experience which you are having. एक मैं और एक क्वेश्चन आपको उसी का एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपके एक्सपीरियंस और बैंकिंग के रिलेटेड है। ओके सर। सो या ओवरऑल एज नाउ यू आर वर्किंग एज एन एएफओ फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर, which type of work is there? Is it field work is also there or maybe सारी की सारी आपकी जितने भी 3 साल आपके गुजरे मोस्ट ऑफ द टाइम आपने कहाँ पर बिताए? इज इट इनसाइड द फोर वॉल्स ऑफ बैंक और इज इट इवन ऑन द फील्ड ट्रिप्स? बोथ। ये तो डे टू डे बैंकिंग का पार्ट है, आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा। ओके। और बैंकिंग तो करनी है फील्ड में, तो आप मतलब रोज मेनली आपको रोज निकलना ही होता है फील्ड में। ओके। जब आप फील्ड में सर्वे वगैरह हो गया, सब चीज हो गया, तो उसके बाद जो चीजें प्रोसेसिंग होंगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो सारा का सारा बैंकिंग का पार्ट है। आप बैंक में बैठिएगा, सो तो सर उस हिसाब इज या सर इज इट द रीजन व्हाई दिस एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर पोस्ट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग? शायद से या इसीलिए ये इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। एएफओ का काम बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसको एक तो सब चीजों का ही नॉलेज होता है। एएफओ जो या। भी बैंक में ज्वाइन करेगा, वो खाली लैंडिंग में तो परफेक्ट होगा ही होगा, बट डे डे बैंकिंग में भी इन्वॉल्व होता है, ऑपरेशनल में भी उसका पूरा का पूरा अच्छा एक्सपर्टाइज हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग तो होती है, एएफओ की जॉब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है ही। Yes, yes, sir. Sir, now we will move towards the other section, which is for all the AFO aspirants who are preparing. अब एक बार एग्जाम की तरफ आ जाते। So बिल्कुल। when you prepared in the year of 2020, of course AFO exam तीन stages में prelims, mains, interview. So in context of prelims, what was your overall strategy and how did you actually prepare for like AFO prelims exam? एक्चुअली एएफओ प्रीलिम्स में जब मैं बीएससी मेरा कंप्लीट हुआ था, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम पे मैं जब ये दिया था, अपना एएफओ दिया था, तो पहले ही टाइम पे मेरा इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर नहीं होता। Oh, ओके। सेकेंड ईयर में मेरा क्या कट ऑफ वगैरह क्लियर था, बट लास्टली जो मेरिट बनी थी, उसमें 0.75 मार्क्स रह गया था मैं। तो okay. थर्ड ईयर में सब चीज़ों को एनालाइज कर रहा था कि आखिर वीकनेस क्या है, क्या है, क्या है। तो उसमें यही है, प्रीलिम्स का जो मेरा स्ट्रेटजी रहा, तो उसमें आप अगर सेक्शन वाइज जाएं, तो सबसे पहले मैथ्स के क्वांट्स की मैं बात करूं, तो क्वांट्स में मैं कुछ टॉपिक्स को लेके चला फिर। Okay. क्वांट्स में जैसा आपका डीआई है, डीआई में 10 to 15% डीआई से हमेशा पूछता ही है। तो अगर आपने डीआई में मास्टर कर दिया, आप उसमें परफेक्ट हो गए, तो ये मान के चलिए एक्यूरेसी है आपकी, तो 10 से 15 नंबर तो आपके फिक्स हैं, कहीं गया नहीं। Yes. ठीक है। डीआई को अलावा आपका क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, और रेशियोज के आते हैं, प्रोपोर्शन के आते हैं, जो कि मुझे बहुत इजी टॉपिक्स लगते हैं। Yes. तो आपको जिन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, उन चीजों को आप कवर कर लीजिए, यस, तो वो चीजें स्ट्रेंथ्स आपको और या स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के अकॉर्डिंग आप मतलब बिल्कुल मेन मेन बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल करके प्रिपेयर करो। बिल्कुल। तो मैथ्स का क्वांट्स का मेरा ये स्ट्रेटजी था। मैं इन टॉपिक्स पे अपना अच्छा वो कर दिया, कमांड बना लिया, तो इजीली हो गया। दूसरा था आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पोर्शन देखे हम। रीजनिंग में सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, वाले क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर वाले क्वेश्चन आते हैं। इनमें ये मुझे अच्छे लगते थे, तो मैं इन्हीं पे वो किया, फोकस किया, इन पे अपना मास्टरी किया।
तो इससे मेरा रीजनिंग में हेल्प मिला। बाकी इंग्लिश में आपको अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो बेसिकली आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है। यस। आपने अगर थोड़ा भी उसमें मेहनत कर ली और न्यूज़पेपर का आप रीडिंग कर रहे हो तो वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होगा, तो उससे आपका इंग्लिश का सेशन इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्री निकालना बस यही है कि आपके स्ट्रेटजी वाइज अगर आप कुछ सिलेक्टिव टॉपिक को लेते हो तो आपका प्री इजीली क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके, ओके सर, करेक्ट। सर ओवरऑल इफ आई आस्क यू, अगर कोई भी एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है एएफओ के लिए, इफ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एएफओ, विद व्हाट वुड बी द मिनिमम टाइम? एक मिनिमम टाइम क्या होगा प्रिपेयर करने के लिए फॉर प्रीलिम्स? कितने दिन? प्रीलिम्स प्रीलिम्स के लिए अगर मैं अब एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूं, अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो तो 1 महीना ही बहुत है। 1 मंथ इज सफिशिएंट, राइट? सफिशिएंट यस, सफिशिएंट, क्योंकि मैं कहा ना आपको, सिलेक्टिव टॉपिक कवर करना है ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा टॉपिक पकड़ के बैठिएगा, या, टाइम कम है तो आप कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे उसमें। यस, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। Sir, in context of prelims only, when I was talking about, what do you ये think? Yeah, what do you think about the level of prelims? What would you say? Hard, moderate, or is it easy? मॉडरेट टू हार्ड। Okay, moderate to hard. हार्ड Sir, can you share some of your sources from which you prepared? Not specific name of the sources. हमें नाम नहीं बताइए, पर आपने क्या-क्या सोर्सेस या फिर बुक्स या फिर कहाँ-कहाँ से आपने पढ़ाई की प्रीलिम्स के लिए? मेनली मैं तो यूट्यूब का सपोर्ट लिया था। यूट्यूब पे जैसे किसी भी सिलेक्टिव टॉपिक पे आपने डाल दिया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, तो या, उसमें बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन-सा मेंटर अच्छा लग रहा है, उसका आप वो कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। उसके फिर उसके बाद मतलब टॉपिक वाइज़ मैं जनरली सिलेक्ट करता था यूट्यूब में, तो उसके बाद उससे देख लेता था। फिर उसके अलावा आप क्या बोलते हैं, बुक्स पे क्वांट्स की एक्चुअली एक कैरियर लॉन्चर की वो आती थी, उसका ओके, मैंने थोड़ा-सा हेल्प लिया था, उसका मटेरियल देखा था, तो उससे काफ़ी हेल्प मुझे मिला था। ओके। सो लाइक प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, क्यूआरई के जो भी या क्वेश्चंस है उनका प्रैक्टिस करना, उनके मॉक देना, ये बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, तो फिर या, आपको पता लगेगा नहीं। यस, दूसरा, क्वेश्चन के साथ-साथ अगर आप मॉक देंगे, तो मॉक से आपको टाइमिंग का थोड़ा आइडिया लग जाएगा और यस, साथ ही साथ क्वेश्चंस के ट्रेंड्स का भी आइडिया लग जाता है कि किस तरह का पूछेगा, क्या करेगा। टाइम मैनेजमेंट का उससे मॉक से आइडिया तो लग ही जाता है। या। फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दिस कुड बी अ रियली लाइक गेम चेंजिंग टिप कि 1 महीने में प्रिपरेशन हो सकता है। डिसेंट बिल्कुल, डिसेंट रिसोर्सेज भी पूरे अवेलेबल है। इतना टेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेंस के लिए प्रिपरेशन आप स्टार्ट करें। तो वहीं से बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं अब, जब मेंस की बात करते हैं, देयर आर जी, वेरियस इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टॉपिक्स। जी, So how, like what should be our strategy and technique? How to cover this much huge syllabus is there, या, and from which there are some topics which if we cover, it can be even covered within 2 months. But then या। how to do that? If possibly how to do that for means. तो ओवरऑल एग्रीकल्चरल स्पेसिफिक टॉपिक्स की आपने कैसे मतलब स्ट्रेटेजी रखी? एग्रीकल्चर स्पेसिफिक टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपको एग्रीकल्चर में तो बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर एएफओ के मेंस का ट्रेंड्स देखिएगा आप, तो उसमें बेसिक्स बहुत पूछता है। तो बेसिक्स के लिए एक बुक है एग्रीकल्चर का, अरुण कात्यायन का। यस, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 अरुण या कात्यायन। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 तो आपकी टिप पे होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ आपका मस्ट है। उसके अलावा आप वो कर सकते हैं, निमराज सुंडा का। निमराज सुंदा। निमराज या सुंदा भी बेस्ट बुक है। या ये 3 बिल्कुल, बुक्स बिल्कुल। तो, ये 3 बुक्स तो लाइक बाइबल है एएफओ के लिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अगर आपको क्लियर करना है तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। और मेंस का प्रिपरेशन प्री के साथ-साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए टाइम हार्डली महीना भर भी नहीं मिलता है। फिर जैसे ही यस, रिजल्ट यस, आता है, अगर यस। आप पहले से नहीं कर रहे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होता है। और इसके अलावा इसमें मेंस की बात करूँ मैं, तो आपके नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके, उसका आपको इनसाइट पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट से बहुत सारा क्वेश्चंस वहीं से बनता है। ओके। ठीक है? अ वेरी बिल्कुल, ग्रेट इनसाइट, यस। बिल्कुल। और टीएनयू का स्टडी मटेरियल होता है। हर ओके। सब्जेक्ट का अपना स्टडी मटेरियल टीएनयू की साइट पे अवेलेबल है। यस, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पोर्टल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम सारे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एएफओ के, उनको बताते हैं कि
ये एक फ्री बिल्कुल यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, तमिलनाडु बिल्कुल एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप बस चैप्टर का नाम डालिए, आप जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाता है वहां पर। बिल्कुल, और सबसे ऑथेंट सोर्स है या दैट इज इसमें, ऑथेंटिक। क्योंकि क्योंकि जब एफओ का आप वो भी देखिएगा, आंसर शीट भी देखिएगा, तो कई जगह कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट मेनली इन्हीं के आंसर्स जो होते हैं टीएनयू के या नाबार्ड के, यही आपके फाइनलाइज होते हैं। या साथ ही साथ वो आता है गवर्नमेंट का साइट का हर बार, ये आता है आपका पीआईबी रिलीज होता है, यस, प्रेस पीआईबी। इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो या उससे आप रिसेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो भी नए नए प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे हमेशा पूछता है कि यस कितना फंड एलोकेट किया है, किस चीज के लिए, क्या कौन सा प्रोजेक्ट आया है इस चीज के लिए। तो यही मतलब सफिशिएंट आपका मटेरियल है अवेलेबल। यस यस, वेरी वेरी राइटली सेड। ये बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट इंसाइट थी, जो कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम बुक्स, ये सारी चीजें आपको कवर करनी ही होती है, क्योंकि करंट पार्ट एग्जाम में आता ही है। स्टैटिक के अलावा बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल करंट पार्ट आता ही है। सर, बिल्कुल। देन जैसे हम बात कर रहे थे, प्रीलिम्स और मेंस के लिए 1 महीने का ही गैप होता है, वक्त बिल्कुल कम है, प्रिपरेशन ज्यादा है। हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली? मैं जैसे कि पहले भी कहा कि प्री के साथ साथ ही मैं पढ़ रहा था मेंस के लिए। तो एक बार आपका क्या बोलते, प्री का रिजल्ट आ गया, उसके बाद तो बस ये मान के चलिए कि आपके पास कुछ ही दिन, हार्डली 20 दिन बचा होता है मेंस के लिए। तो उसके बाद लग जाइए उसमें। तो टाइम मैनेजमेंट का क्या है, आप ये मान के चलिए बा आपको टाइम देना ही है, जितना आप मैक्सिमम दे पाओ उतना अपना दीजिए। साथ ही साथ अपना मॉक करते रहिए, ऑब्जेक्टिव बनाते रहिए, तो हेल्प होता रहेगा। सर, फॉर स्पेसिफिक सेक्शन, फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स, कुछ टाइम एलोकेट करना चाहिए हमने? बिल्कुल बिल्कुल एलोकेट करना चाहिए। आप ये मान के चलिए अपना फिक्स पर डे के रूटीन में अगर आप 2-3 घंटा क्या बोलते स्टैटिक पोर्शन को दे रहे हैं, तो कम से कम 1-1.5 घंटा आपका जो ये है आपका जो गवर्नमेंट डेटा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है जो है, उसके लिए देना ही चाहिए आपको। ओके सर। सर, देन कोई भी, अब सपोज फॉर एग्जांपल एएफओ का मेंस एग्जाम दे दिया किसी भी स्टूडेंट ने, ही क्लियर्ड हम्म। प्रीलिम्स, ही गिव आपका मेंस एग्जाम। इसके बाद तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू। बिल्कुल। ओवरऑल, इफ वी वांट टू टेल टू ऑल द एएफओ एस्पिरेंट्स, सबको अगर हमें बताना है कि भाई इंटरव्यू कैसे होता है एएफओ हम्म। एग्जाम का, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस हाउ ओवरऑल एएफओ इंटरव्यू प्रोसेस इज? बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। आप जब भी इंटरव्यू रूम में इंटर करते हैं, तो करीबन करीबन 5-6 पैनलिस्ट बैठे होते हैं उसमें। बट मेन चीज ये है, बस आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जैसे जी। आप इंटरव्यू रूम में इंटर कर रहे हैं, आपको बस आप कॉन्फिडेंट है तो सब चीज अच्छा होगा। मेन यस। चीज ये है, आपका नॉलेज मैटर नहीं करता वहाँ पे। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इंटरव्यू रूम में आपका नॉलेज मैटर नहीं करेगा, आप अपनी चीज को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ वही चीज देखा जाता है मेनली। क्योंकि नॉलेज को टेस्ट करने के लिए प्री और मेंस हो चुका है, उनके बाद यस। नंबर है, मार्क्स है, आपका सब चीज है। बस वो आपके सामने कुछ सिचुएशन रखते हैं, कुछ चीज मतलब नॉलेज के बाद तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे। आपने क्या किया इतने ड्यूरेशन में, आपके एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बेसिक सा होता है इंटरव्यू। इतना कुछ हार्ड नहीं होता उसमें इंटरव्यू में। Okay. Sir, overall, to prepare for an interview, how did you prepared? And then you can continue with the questions which were asked you, like the interview panel asked you. Those also you can share some of your experience if you remember. ओके, इंटरव्यू का जो इंटर होने के बाद जनरली फर्स्ट तो इंट्रो हुआ, इंट्रो वगैरह पूछे हो। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन ही था उनका, जैसे मतलब ग्रेड शीट होता है उनके हाथों में, सारा आपका मार्क्स होता है ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी होता है। तो उसमें से दूसरा क्वेश्चन ही उनका ये था कि आपका एकेडमिक्स जब इतना अच्छा है, तो आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हो। Yes. तो मेरे लिए तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ही उनका ये था कि आप क्यों बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हो, आप आईएएस पीसीएस के लिए प्रिपरेशन करिए, उसमें जाइए, एकेडमिक्स में जाइए, इसमें क्यों आ रहे हो। तो तो आपके पास उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए बस, कि मतलब आप, मैं कहा ना कि आप क्या प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। Yes. तो ये था क्वेश्चन। बाकी लाइव स्टॉक वगैरह से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि किसी फार्मर को आप पिगरी रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे। Okay. तो इस तरह का मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल होता है कि जनरली पिगरी के लिए अगर पूछा है, तो मतलब आपका एक आंसर होना चाहिए नॉर्मल, कि पिगरी अगर हम किसी फार्मर को रिकमेंड तब करेंगे, उसका हम सोशल टैबू जरूर देखेंगे, वो किस कम्युनिटी से आता है,
क्योंकि जनरली आप मॉम डाउन कम्युनिटी को पिगरी रिकमेंड नहीं करोगे। तो यस, भाई इस आई तरह गॉट का इट। मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे। एप्लीकेशन बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेशन। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा आपको। यस, यस सर। बाकी एंड आपके स्टेट से, मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ की क्या चीज फेमस है, या कौन सी वहाँ की कौन फेमस है, वहाँ का क्या चीज, ऐसी चीजें ही पूछता है। और जो उस टाइम पे चल रहा होगा, जो आपका करंट सिनेरियो में जो भी टॉपिक चल रहा होगा, उससे जरूर पूछता है। ओके, सो सर देन हाउ कैन अ स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर इट? अगर इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो आपके पर्सनैलिटी के रिलेटेड भी आएंगे, ऐसे बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी आएंगे, कंसेप्चुअल भी आएंगे, सो हाउ टू प्रिपेयर देन? व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर फॉर सच अ इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आप वही दे जहाँ से आप वही कहा ना मैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, थोड़ा बहुत वहाँ का इंसाइट ले लीजिए कि हाँ क्या चीज़ यहाँ का फेमस है, क्या चीज़ वो है। बाकी अपना एकेडमिक्स से देख लीजिए, आपका एकेडमिक्स में जो भी आपका ग्रेड सीट है, उसमें क्या आपका सबसे स्ट्रांग पार्ट है, क्या आपका सबसे वीक पार्ट है। बाकी अगर आप ड्रॉप किए हो तो क्यों किए हो, ड्रॉप के दौरान क्या किए। इस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनाइए इंटरव्यू के लिए। बाकी जो नॉलेज का मैं बोला, नॉलेज तो आपको बेसिक्स बस होना चाहिए। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतना पूछा जाएगा वहाँ पे। इस तरह से अपना प्रिपेयर करिए। ओके सर, ओवरऑल रियली ग्रेट इनसाइट। या लाइक अपने स्ट्रेंथ्स को लेके चलिए, वीकनेसेस को लेके चलिए, बिल्कुल। एंड या एंड मोर इम्पोर्टेंटली whatever like our personality is there related to that where you belong, take the या concepts and try to associate those things with yourself. इससे आप आंसर्स दे पाओगे। जस्टिफिकेशन आपको इंटरव्यू में हर चीज में देना ही होगा। सर बिल्कुल। अगर अगर हम प्रीलिम्स देखते, अगर हम मेंस देखते और फिर इंटरव्यू देखते, ओवरऑल एएफओ एग्जाम अगर कोई भी स्टूडेंट दे रहा है, व्हाट वुड बी योर मेन और बेस्ट एडवाइस फॉर ऑल सच एएफओ एस्पिरेंट्स आउट देयर? आपका मेन बेस्ट एडवाइस क्या होगा सबके लिए? मेरी एडवाइस तो सिर्फ एक ही होगी कि आप कोई भी एग्जाम जैसे प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेनली बस आप पहले एक फोकस बना लीजिए कि मुझे हाँ अगर करना है, तो उसके जो भी मतलब मटेरियल है आपके पास, एक तो वो कंप्लीट होना चाहिए। अपना मटेरियल सबसे पहले पूरा रख लीजिए, ठीक है। उसको आप मैं बताइए आपको प्री के साथ मेंस का प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। जैसे आप प्री का प्रिपरेशन करें, मेन का प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। मॉक दीजिए, मॉक ज़रूर देना है, मॉक दीजिएगा तो अपनी वीकनेस का खुद ही पता लगेगा, कहाँ पे मैं वीक पड़ रहा हूँ, कहाँ पे मेरा कौन-सा पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। जब ये सब चीज़ें करिएगा तो आप खुद ही सक्सेस आपको मिलेगी। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके सर। सर एनी स्पेसिफिक स्किल और एक्टिव मतलब कोई भी स्किल या फिर एट्रीब्यूट किसी स्टूडेंट में जो एएफओ के लिए ज़रूरी हो? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं मानता। हर कोई बन सकता है, बस आपके मन में होना चाहिए कि हर कोई कर सकता है। बाकी कोई ऐसे स्किल्स नहीं है, मेरे ओपिनियन में। ओके, एंड देन व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एएफओ एग्जाम, या अगर आपका 1 साल में नहीं निकलता है फॉर एग्जांपल, और हुँ, मे बी किसी ने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया है, मे बी किसी ने मेंस क्लियर नहीं किया, सो देयर आर वेरियस फेलियर्स ड्यूरिंग योर कॉम्पिटिटिव जर्नी आल्सो। फॉर या सच ऑल स्टूडेंट्स, हाउ टू कीप योर मोटिवेशन अलाइव? मोटिवेट कैसे रहना है? मोटिवेट तो देखिए, मोटिवेट रहने के लिए फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जो मैं समझता हूँ, अपने फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स में रहिए। यस, और फेलियर तो जिस आप जब फेलियर फेस करते हैं, तो वो सक्सेस का एक स्टेप है। क्योंकि आप जब फेलियर कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए सक्सेस के उतने आप पास जा रहे हैं। आपको अपनी वीकनेस का पता लग रहा है कि मैं क्यों फेलियर हुआ। तो उस चीज़ को सेल्फ मोटिवेशन बनाइए। फेलियर को ही अपना मोटिवेशन बना दीजिए कि हाँ, फेलियर मिला कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो जाए। आप उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़िए। सब चीज़ें सक्सेसफुल अच्छा होगा सब। सर इट वाज रियली प्लेजेंट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, क्योंकि आपने जो भी आंसर्स दिए वो बहुत ही रियलिस्टिक थे, एंड आई थिंक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स उनको मतलब आई थिंक दिस पर्टिकुलर सेशन व्हिच वी हैड, इट वाज वेरी वेरी रिलेवेंट कि जो चीजें सही में कैसे एक एफ ऑफिसर को होना चाहिए एंड व्हाट इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई थिंक स्टूडेंट्स बहुत सारे इंसाइट्स ले सकते हैं। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा, आफ्टर विच जी, डेफिनेटली विल एंड द सेशन। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मेरा ये जी, क्वेश्चन ये है कि
2020 में जब रिजल्ट लग गया, व्हेन यू अंडरस्टूड कि मेरा सिलेक्शन हो गया है एएफओ ऑफिसर, दैट लाइक अभिषेक सर इज नाउ एन एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन? पहला रिएक्शन क्या? रिजल्ट देखते ही मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बस ये मान के चलिए कि कुछ टाइम तक तो ब्लैंक हो गया जैसे ही रिजल्ट है, क्योंकि असल में कोरोना का पीरियड चल रहा था 2020 में, और यस। एग्जाम बहुत पहले हो चुका था। रिजल्ट आया था हमारा अक्टूबर या नवंबर के मंथ में, बहुत लेट में आया था। मतलब रिजल्ट जनरली अप्रैल के मंथ में रिजल्ट आ जाता है, बट वो रिजल्ट बहुत लेट में आया था, तो काफी वेट भी कर रहे थे हम लोग। हालांकि एश्योर था कि मैं हो जाएगा, बट वही है, जब आपका हो जाता है रिजल्ट, लास्ट में आपके हाथ में होता है, तो वो फीलिंग अलग ही होती है। आपको यस। मतलब लगता है हाँ, जितना स्ट्रगल किया, जिस चीज के लेके वो बस आपने अचीव कर लिया, तो फीलिंग बहुत अलग होती है। यस। I think this is the best answer which I think most of the जितने भी AFO एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट्स है जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 के IBPS AFO के लिए, ये लास्ट का आंसर उन सब के लिए बस मोटिवेशनल नहीं है। आई थिंक उन्होंने इससे इंस्पायर करना चाहिए कि यही फीलिंग आपकी भी 2024 में हो सकती है, एंड बिल्कुल। इट विल हैपन ओनली इफ अगर आप ये 2 महीने आप प्री मेंस इंटरव्यू इन तीनों का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से अगर करें। सो लास्टली फ्रॉम ऑल यू बोर्ड, लाइक आई एम वेरी वेरी थैंकफुल सर कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया, और इतनी ज्यादा एग्जाम के रिलेटेड भी, और रियलिस्टिक एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की लाइफ कैसे होती है, ओवरऑल डे टू डे एक्टिविटीज क्या होती है, ये सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ आपने जो शेयर किए, all whatever you gave, the knowledge, your strategy, the insight, the experience, we are very very thankful. Thank you for joining, as well as for all students also, this session I think it would be very very useful and fruitful, which they are going to definitely cherish for their upcoming IBPS AFO exam. ओके, थैंक यू Yes, thank you sir. So we will end the session here. Thank you guys, and सर। thank you sir again, and see you next time. ओके।